Hi students, I am Vidhan Krishna from Vidhan English classes. Today we are here to practice few important extract based questions from the lesson The Making of a Scientist. In board exam, this is the pattern and it is very easy to understand and answer also because already context is given to you. Reference to context questions are very easy to answer as already reference is given in front of you in the question paper. So without wasting time, let's start the practice of few important extract from the lesson The Making of a Scientist. The first extract is here. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. In sports, that would be like making big league at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. For Richard A. Bright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. So based on the extract, the first question here goes, what was Richard's research article about? So obviously the answer is Richard's research article was about butterflies. Second question is, how does the writer equate a Bright's achievement to an achievement in the world of sports? So this question you have to answer. So answer is here. An important science journal had published an article written by college students. It was an outstanding achievement at this age. It could be equated to the achievement of a player in the world of sport if he makes big leagues at the age of 15 or hits a home run. This comparison shows it to be a unique achievement. Second question is, how does the writer equate a Bright's achievement to an achievement in the world of sports? राइटर कैसे बराबर मानता है, कंपैरिजन करता है ए ब्राइट्स के अचीवमेंट जो उसने साइंस में अचीव किया था टू एन अचीवमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स? कैसे कंपेयर करता है स्पोर्ट्स के अचीवमेंट से? यूँ तो लेसन में स्पोर्ट्स का वर्णन नहीं है, लेकिन इस लेसन में अमेरिका में बेसबॉल इज अ वेरी पॉपुलर गेम, उससे तुलना किया गया है. An important science journal had published an article written by college students. So very prominent, बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस जर्नल जिसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक का ही छपते थे आर्टिकल, शोध, उसमें इस बार किसका छप गया था? कॉलेज स्टूडेंट्स का. It was an outstanding achievement at this age. जो रिचर्ड ब्राइट का एज था उसके तुलना में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि इतने बड़े प्रतिष्ठित स्टीम्ड जर्नल में उसके आर्टिकल को, उसके शोध को जगह मिला. इट कुड बी इक्वेटेड टू द अचीवमेंट ऑफ अ प्लेयर इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट. इस अचीवमेंट को ऑथर ने कंपेयर किया है, इक्वेट माना है, वैसे ही मानो उपलब्धि है, उपलब्धि था साइंटिस्ट ब्राइट का. जैसे कि प्लेयर कोई स्पोर्ट्स वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में पहली बार खेलता है और उस टूर्नामेंट में बहुत बड़ा अचीवमेंट करता है, 15 इयर्स की एज में हिट्स अ होम रन. होम रन है मानो 6 मारना, जैसे क्रिकेट में होता है 6 मारना, वैसे ये होम रन एक बड़ा स्कोर होता है बेसबॉल में. वैसे ही करामात करना मानो ब्राइट ने कर दिया था. तो उसके वर्क को ऑथर कंपेयर करता है होम रन जैसे मारना अचीवमेंट. This comparison shows it to be a unique achievement. ये जो कंपेयर किया गया है स्पोर्ट्स से, ये कंपेयर मानो कि एक बड़ा अचीवमेंट जैसे स्पोर्ट्स में कोई बालक कर दे, वैसे ही विज्ञान के क्षेत्र में ए ब्राइट ने एक महान अचीवमेंट किया था. थर्ड क्वेश्चन इज, which journal is referred to in the first line? So फर्स्ट लाइन में जो जर्नल की बात है, जो साइंटिफिक मैगजीन की बात है, किसके तरफ इशारा है? विच जर्नल इज रेफर्ड?
So options are Science Forum, Proceedings of the National Academy of Science. Third option is the New Science Journal. D is Scientific World. So obviously B is the correct answer. Proceedings of the National Academy of Science. Next question is, a Bright was an average student. True or false? So obviously a Bright was not an average student. He was very intelligent. बहुत मेधा से भरा हुआ विद्यार्थी था वो, कौतूहलता से भरा हुआ विद्यार्थी था वो, जो बचपन से हम लोग देखते हैं कि बटरफ्लाई के पीछे दौड़ता था वो, कौतूहलता था उसके अंदर, उत्सुकता था उसके अंदर, जो सारा एलिजिबिलिटी जो एक साइंटिस्ट में होना चाहिए वो बचपन में ही हमें दिखाई पड़ता था उसके लाइफ में. So obviously this statement is false. Now let's come to the next extract. I was his only companion until he started school, his mother said. After that I would bring home friends for him. But at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade. So in this paragraph author says that I was his only companion. माँ कहती है कि मैं ही सिर्फ उसकी साथी थी, संगी थी. Until he started school, his mother said. जब वो स्कूल स्टार्ट किया, बाल अवस्था से मैं ही एक साथी थी उसकी. After that I would bring home friends for him. मैं उसका मन लगाने हेतु, उसका सर्वांगीण विकास हेतु, थोड़ा सोशल भी रहे बच्चा, इसके लिए मैं बच्चों को, बाहरी बच्चों को, अगल बगल के बच्चों को घर बुलाती थी. बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर. बट रात्रि में हम लोग मिल करके बातें करते थे विज्ञान के ऊपर. उसे कोई न कोई मेंटल एक्सरसाइज के लिए मैं टॉपिक देती थी. रिची वॉज माई होल लाइफ. रिची मेरा पूरा जीवन था. बिकॉज पिता बचपन में ही मर गए थे उसकी. माँ कहती है कि मेरा जीवन था रिची. मेरा जीने का उद्देश्य सिर्फ रिची के लिए था. आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड. जब रिची का पिता 3री कक्षा में जब वो पढ़ता था तभी गुजर गए थे. तो उसकी माँ ही उसकी सब कुछ थी. और उसकी माँ कहती है मेरा जीवन था मेरा बच्चा. So based on this extract, first question is, in which class was Richard studying when his father died? Options are 4th grade, 3rd grade, 5th grade, 6th grade. So obviously B is the correct answer, 3rd grade. Second question is, how was a Bright helped by his mother? So this question we have to answer in 30 words. एब्राइट की माँ एब्राइट की मदद कैसे करती थी, किस प्रकार से सहयोग करती थी? हियर इज द आंसर. एब्राइट वॉज अ बॉय विथ ब्राइट माइंड. एब्राइट जो है बाल अवस्था से ही बहुत ही मेधा वाला बच्चा था. वो बहुत इंटेलिजेंट माइंड था उसका. ही हैड अ ग्रेट क्यूरियोसिटी टू लर्न न्यू थिंग्स. सो उसके अंदर एक बहुत उत्सुकता, जिज्ञासा बचपन से ही थी नई चीज जानने हेतु. हिज मदर ऑलवेज इनकरेज्ड हिम टू लर्न मोर एंड मोर. उसकी माँ एक अच्छे संगी के तरह, एक साथी के तरह हर समय मोटिवेट करती थी, इनकरेज करती थी कि वह सीखे नए नए चीज. उसके कौतूहलता को शांत करने में अहम भूमिका निभाती थी. शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स. उसको कभी कभी एजुकेशनल ट्रिप पे भी ले जाती थी, घुमाने हेतु ले जाती थी इधर उधर, जिससे बालक सीख सके आसपास की चीजों को देख करके. बॉट हिम टेलीस्कोप्स. और विज्ञान के शोध हेतु, विज्ञान की परख हेतु उसे कुछ सामग्री भी उपलब्ध कराती थी. वो खरीद कर लाती थी उसके लिए, जैसे कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज एंड मेनी अदर थिंग्स. और उसके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास एंड मेनी अदर थिंग्स उसके लिए खरीद कर लाती थी, जिससे कि वह घर में शोध कर सके, अपनी कौतूहलता को व्यवहारिक रूप से समझ सके, परख सके, जान सके और अपना ज्ञान वर्धन कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन रिचर्ड वॉज एट स्कूल हिज ओनली कंपेनियन वॉज डैश.
सो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है ये। सो जब रिचर्ड स्कूल में था तो उसका मात्र एक ही कंपेनियन था, वो कौन था? ऑब्वियसली हिज मदर वुड बी द आंसर। Next question is, but for his mother's help, Richard would not have become a singer. True or false? So obviously false है, क्योंकि रिचर्ड का कोई एम्बिशन बिना सिंगर बनना तो था नहीं। रिचर्ड का एम्बिशन बनना था साइंटिस्ट। और क्वेश्चन है, बट फॉर हिज मदर्स हेल्प रिचर्ड वुड नॉट हैव बिकम अ सिंगर। माँ की मदद अगर ना मिलती तो वो सिंगर नहीं बन पाता। ये पूरा स्टेटमेंट ही फॉल्स है। माँ की अगर सहयोग ना मिलता, माँ की अगर मदद ना मिलता तो शायद वो अच्छा साइंटिस्ट नहीं बन पाता। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स।